Hello class 10. Today we will start with a new topics of chapter chemical reaction and chemical equation. Precipitation reaction. Very important from examination point of view. That's why I have chosen to give you a lecture. मैं आप लोग को आज सही तरीके से बता सकूंगा कौन सा precipitation reaction होता है और क्यों होता है. Precipitation reaction are nothing but a double displacement reaction. Please here note down. Precipitation reaction are nothing but the double displacement reaction. Are those reaction, precipitation reaction are those reaction in which two ionic compound in aqueous medium they undergo exchange of ions, means exchange of oppositely charged ions to form two different ionic compounds, one of which is insoluble in water, the other compound is insoluble in water. That is what precipitation reaction. And precipitation, the one which is the product form is insoluble in water, it will always show color. Through the color we can identify that it is a precipitation reaction. Now we'll go about the reaction. Lead nitrate. Lead has a valency 2, it will multiply and this one cross multiply and it becomes lead nitrate, potassium iodide. When you react, this metal will pick this what we call exchange of ions. Metal, non-metal, potassium metal, nitrate is a polyatomic non-metal anions to form lead iodide 2. Lead iodide is 2. So this lead iodide is insoluble in water, but the other one which is forming as a exchange of ions, it is colorless. So this is nothing but yellow color which you will be getting in a compound or in a beaker. They will show light yellow color. At that point of time, you will know precipitate means aggregate of ions or the metal and anion aggregate. एक जगह वो जमा हो जाता है. इसे हम कहता है प्रिसिपिटेट रिएक्शन. ये से मेरा सिंबल ऐसा है कि आप अगर बीकर लेंगे, आप दो एक्वस सॉल्यूशन बनाओ. पहला लेड नाइट्रेट का इन वाटर, देन पोटेशियम आयोडाइड का इन वाटर. फिर आप उनको मिक्स करिए दोनों तरफ. व्हेन यू आर मिक्सिंग, यहाँ पर एक सॉल्यूशन, यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड विच इज नॉट इंसॉल्युबल इन वाटर, ये सेटल करो एंड इट विल बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स कलर. इसका कलर आपको बता देंगे कि ये कौन सा कंपाउंड. ओनली केमिस्ट पीपल नो दैट कि वो कौन सा कलर और कौन सा रिएक्टेंट हो रहा है. लेड आयोडाइड फॉर्म विच इज इंसॉल्युबल इन वाटर, पीपीटी. वी राइट पीपीटी, इट शोज light yellow color, and the potassium nitrate is nothing but it goes out the solution. We can just discard. Next form, sodium sulfate plus barium. What happens here? Also exchange of ions. This metal will put chlorine is a non-metal, so sodium will pick chlorine, barium will put sulfate. Sulfate is nothing but polyatomic anions, means two or more non-metals. These are non-metals, sulfur and. Now what happens? They will exchange the ion, they will form barium sulfate plus sodium chloride. Now this barium sulfate in the solution you will get at the bottom of the beaker, it will show white color. When it say white color, we will know. So we will put the symbol in the writing PPT means and go downward, means it will settle at the bottom of the glass beaker. Next come sodium chloride plus sodium nitrate. See, here is a non-metal metal. These are called ionic. Ionic compound means metal and non-metal compound, and they are formed by strong electrostatic or a coulombic force of attraction. Means एक चार्ज होगा, मेटल चार्ज होता है ना, वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में. लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस, और ये क्या होता है नॉन मेटल, क्या होता है वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. मेटल नॉन मेटल. अभी चलो सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट को करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा. ये मेटल ये नॉन मेटल को पड़ेगा पॉलीएटॉमिक आयंस, और ये सिल्वर मेटल है, ये आपका क्लोरीन नॉन मेटल को पकड़ेंगे, क्या बनाएगा सिल्वर क्लोराइड. ये हमारा व्हाइट कलर प्रिसिपिटेट हो जाएगा, जो हमें फिल्टर करके सेपरेट करना है. तो सोडियम सल्फेट प्लस फेरस
क्लोराइड, फेरस, नॉट फेरिक, फेरिक डिफरेंट होता है, 3 वैलेंसी, ये फेरस है। ये क्या करेगा, सोडियम विल पिक क्लोरीन, सोडियम विल पिक क्लोरीन एंड आयरन विल पिक सल्फेट, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स। फेरस सल्फेट, यस प्रिसिपिटेट है, हम हमारा बीकर में, बॉटम ऑफ द बीकर में वो सेटल हो जाएंगे, इट विल नॉट डिसॉल्व, इफ यू डिसॉल्व आल्सो इट विल slightly come and stay at the bottom of the beaker. It is nothing but a light green color. That is finished. Ferrous sulfate are always light in green. Now calcium hydroxide, it is also known as the slake lime. Slake lime कभी wall में whiting करो और उसके बाद में छोड़ दो, हफ्ता दिन 10 दिन के बाद देखो that wall it begin to shine, वो आपका शाइनिंग दिखाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाया वो कैरेक्टर, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, मार्बल। दैट्स व्हाई व्हाइट कलर व्हेन यू पेंट ऑन द वॉल इट बिकम शाइनिंग आफ्टर फ्यू डेज। तो आपका क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, मार्बल, MARBEL, मार्बल प्लस वाटर, आपका वो चला गया, वाटर चला गया बाहर, सॉरी। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा, यह हमारा एसिड फॉर्म में होगा तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कहूंगा। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल है, ये आपका क्लोरीन को पकड़ेगा, नॉन मेटल, एक्सचेंज ऑफ आयंस, मेटल नॉन मेटल मेटल, पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, इन्होंने क्या पकड़ा आपका OH पकड़ा और क्या बना डाला आपको वाटर। तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करेगा, ये प्रिसिपिटेट, इसको आप जितना भी डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो फिर वो सेटल हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द, एंड दिस वाज द व्हाइट कलर। नाउ यू कम टू द सेकंड पॉइंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड, this is called alkali. This is called alkali. Alkali means those, and sodium and potassium are two more reactive elements. They react with water. They form a compound, hydroxide compound, and those are not alkali. चलो वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया यहाँ पर भी वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेटल ये नॉन मेटल करेगा अपोजिट, जैसे डबल डिकम्पोजिशन में था, और ये कैल्शियम क्या करेगा, ये हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे, क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमें कभी कभी बेवकूफ बनाया जाता है, उनको लोग कहता है आपका स्लेक लाइम, कभी भी कंफ्यूज मत होना, स्लेक PED, स्लेक लाइम, सॉरी स्लेक लाइम, स्लेक लाइम मींस उसका निक नेम है, किसी का निक नेम होता है, ऑफिशियल नेम होता है, इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज नथिंग बट व्हाइट इन कलर, दिस इज व्हाइट इन कलर, दिस वेरी व्हाइट इन कलर। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर, देखिए वहां पर टेक्निक है, 6 कंपाउंड को आप पढ़ लीजिए, वो आपका प्रिसिपिटेशन सिलेबस में है, वो क्लास 10 का। पोटास दिस सॉरी लेड आयोडाइड क्या कलर का होता है, येलो, क्योंकि हम लेबोरेटरी में कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट, हम लोग को पता है क्या कलर का होता है, वो आपको रिमेंबर, व्हाइट, आपका येलो कलर। बेरियम सल्फेट व्हाइट इन कलर, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट इन कलर, फेरस सल्फेट व्हाइट नहीं होगा, येलो नहीं होगा, लाइट ग्रीन होगा, एंड कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल क्या कलर का होता है, व्हाइट का होता है। तो हम लोग को ये सब चीज व्हाइट वॉश में जो यूज होता है शाइनिंग करता है, दैट इज कॉल्ड द मार्बल। ये हमें 6 पॉइंट अगर आपको रिमेंबर करेंगे तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन का आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन सा बनाएगा। ओके, सो व्हाट आई एक्सप्लेन, इट इज नथिंग बट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करता था, आपका दोनों आयनिक प्रोडक्ट जो आपको बनाता था वो आपको सोल्यूबल इन वाटर था, पर प्रिसिपिटेट रिएक्शन में डबल डिकम्पोजिशन फॉलो करता है। पर यहाँ पर द ओनली डिफरेंस इज दैट एक जो आयनिक कंपाउंड बनाएगा वो सोल्यूबल नहीं होगा, बल्कि दूसरा वाला सोल्यूबल होगा। जो सोल्यूबल नहीं होगा वो बीकर के डाउन द बीकर में वो आपको मिल जाएंगे, उसको आप फिल्ट्रेशन करके निकालिए और वो कलर दिखाएंगे। सबसे पहला कलरलेस नहीं, कलर येलो, लाइट ग्रीन, व्हाइट, कर्डी व्हाइट, कुछ कलर दिखाएंगे, ग्रीन, ब्राउन, कुछ भी ऐसा कलर दिखाएंगे, और वो क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा वाटर। ओके देन, टिल देन टेक केयर। दोस्त for the first time, please subscribe my channel. Those who are new and those who are following me, you please pause it and copy the thing and share to your friends and dear ones. Those who like my notes and my way of explanation, it is very simple, to the points, to the syllabus. Thank you. Take care. Goodbye.